Hello students, let us do the quick revision of three chapters: electricity, light and magnetism. So here the first topic is light, and I have taken important questions, basically the numerical ones of all three chapters, and numerical based question basically, and these questions are important for exams also. So let us start the revision of these questions. Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3.3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of light in vacuum is given 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the refractive index is given 1.50. So n, you can say the refractive index we represent it by n. It is given 1.50, and the speed in vacuum means that is denoted by c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is given, and we have to find out what is the speed of light in glass. So that we have to find out means v. So what is the formula? N equals to c over v. C means the speed of light in air or in vacuum, and v is the speed of light in the medium, and here the medium is glass. So c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the speed we have to find out here v, and refractive index is given 1.50 equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is v. So how we calculate v? V equals to 3 into 10 to the power 8 over 1.50, and this meter per second, and gets cancelled two times. So the speed of light in glass comes 2 into 10 to the power 8 meter per second. So this is a simple question. Now move to the next one. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeters from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. So what is given? See, this question is very important and good question. A convex lens. Which lens is given first? A convex lens is given. Forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter. Means what is given? Image form at a distance of 50 centimeter means we keep on writing what is the value, what are the values given. So first in given it is a convex lens. This is the first thing given that we have to write at first, and object distance, or sorry, image distance v is given 50 centimeter, and in case of convex lens, according to sign convention, v is positive, always positive. Where is the needle place means we have to find out u, needle place, when the image is equal to the size of the object. What is given here in this question? Image is equal to the size of the object. So m equals to 1. When the image and object are of same size, in that case m is 1. But here you see, what is the sign of m? It will be plus or minus. See, what is given in the question? The image formed is real and inverted. So m is always negative when the image formed is real and inverted. So here in this case also we'll take m equals to minus 1. Now we have v, u and m. Which formula we can use here? M equals to minus a plus. M equals to plus v over u. Why it is plus? Because it is a case of magnification in case of lens. अगर ये मिरर का केस होता तो माइनस लेते, but here it is given lens, so m equals to v plus v over u. Now put the values. We solve here. M equals to minus 1 and v equals to 50, and u we have to find out,
and here we get u equals to minus 50 centimeter. So u we have minus 50 centimeter. Now the second thing, first thing we got the answer, the image will be placed, sorry, the object will be placed at a distance of 50 centimeter. U comes 50. Now the next thing to find out power, but to calculate power we need F, because the formula of power equals to P equals to 1 over F. So we need focal length first. So to calculate focal length we will use the formula. Now 1 over F equals to 1 over V minus, since it is a length, so it will be minus 1 over F. F equals to find out 1 over V. V is how much? 50, and minus U is also minus 50. 1 over F we get, this will become plus, and 2 over 50. Then finally the F we get 50 by 2. Reciprocal हो जाएगा दोनों का. F equals to 50 by 2. Now it will be 25 centimeter. Since we get focal length 25 centimeter, we can calculate power. P equals to 100 over F. See, when the focal length is given in centimeter, we use this formula. When the focal length is given in meter, we use P equal to 1 over F. But when it is given centimeter, here we can write this P equal to 100 upon F. The formula of focal length in case of focal length given in centimeter, the formula of power is 100 over F. ठीक, अगर यहाँ पे मीटर होता, then we can use the formula P equals to 1 over F. तब ये यूज करेंगे, अभी हमारे पास सेंटीमीटर है तो ये यूज कर लेते हैं. Then 100 over 25, and we get now 4 diopter, and it will be plus 4 diopter. The power comes 4 diopter. So the answer is very simple. So first we have got U minus 50. Then we calculated focal length, that comes 25 centimeter. And in the last, when we get the focal length in centimeters, 25 centimeter, we can calculate power by using the formula 100 over F. It comes now 4 diopter. Simple question. Now move to the next one. A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? So I think it is very easy to calculate. What is given? Power P equals to given 1.5 diopter. So we can calculate focal length F equals to 1 over P. Since P equal to 1 over F, then F can be written P equal to 1 over, F equal to 1 over P. So 1 over 1.5. F equals to 1, so write it 10 and 15, and when we simplify it, it comes 0.666 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.67, and it will be in meters, or the focal length it will come plus 67 centimeter. Why I am writing plus? Because we have to find out also which kind of lens it is. So this sign will tell us which kind of lens it is. Now the focal length is 67 centimeter. Then we can say the lens is converging or diverging. Converging, because the focal length of convex, converging means convex. So the lens is converging or convex. Okay, because the converging lens, convex lens is also called converging lens. It behaves, it just focuses the light at one point. That's why it is called converging lens. Okay, now we move to the next one. It is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length of 12 centimeter. What should be the range of a distance of an object placed in front of the mirror? Very good question. एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, बोर्ड एग्जाम्स में क्या दिया हुआ है, एक आपको कॉन्केव मिरर से इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है. तो पहले हमारे दिमाग, हमको ये पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट कि कॉन्केव मिरर से सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में इरेक्ट इमेज, बाकी सारी कंडीशन में हमें कैसी इमेज मिलती है, रियल इन्वर्टेड. देयर इज ओनली वन केस व्हेन वी गेट इरेक्ट इमेज, बाकी केसेस में हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिलती है.
और वो कंडीशन कब है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन focus and pole. In this case only we can get the real virtual and erect image. So this way the image will be formed. I'm just giving you a rough idea. So here the image will be formed behind the mirror and it will be virtual and erect, larger in size. So this way the image will be formed here. So means if you will place the object somewhere between P and F, then only you can get an erect image. So it means if we place, in this case when the focal length is 12 centimeter, this is focal length is given 12 centimeter, means if you will place this object between this pole and focus, means 0 to 12 centimeter, you will get virtual erect image. ओके, 12 पे भी नहीं रख सकते एग्जैक्टली, 0 पे भी नहीं. 0 पे आएंगे तो पोल आ जाएगा और 12 पे रखेंगे तो फोकल लेंथ है. इसका मतलब 0 और 12 के बीच में. सो यू कैन से u is less than 12 centimeter and greater than 0 centimeter. Okay, so this should be the range. This way we can represent the range. The first part we can answer like this: the range of the object distance is, or where the object can be placed, is between 0 to 12 cm. Not exactly at 12, not exactly at 0. Between 0 and 12 centimeter we can. So इस पोल से लेके फोकस तक के बीच में कहीं भी इन पॉइंट्स पे कहीं भी रखें, हमें इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? तो सिंपल है, फिगर देख के लग रहा है तो आंसर सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा. And the ray diagram that I have already drawn. So this way you can draw it properly. Just go through the book and you can draw this diagram. Okay, so that is already done. Now the third part. Where will the image of the object be if it is placed 24 cm in front of the mirror? बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया. आप तो देखो ये यहाँ पे सब अंडरस्टैंड करने वाले क्वेश्चन है. कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, आपको पहले समझना है कंसेप्ट को, फिर आंसर करना है. वो बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का मतलब ये 12 इतना है और ये आ जाएगा यहाँ पे 24 फोकस का फोकल लेंथ का डबल क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी. तो जब ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी कि सी पर रखा है तो इमेज कैसी बनेगी? तो ये पूछा है, तो इमेज कैसे बनेगी? जब ऑब्जेक्ट 24 पे सेंटीमीटर रख देने, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो हमको क्या मालूम है? किसी भी कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑफ द सेम साइज. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी. ठीक है, तो आपने इसका क्या, वेयर विल द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? एट 24 सेंटीमीटर वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी के नीचे इन रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पे बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज जस्ट नीचे. फिर ड्रॉ रे डायग्राम. अब इसके लिए रे डायग्राम बनाना तो आपको मालूम है ये कंडीशन जो सेंटर कर्वेचर वाली कंडीशन है ये आप बना लेंगे. फिगर मैं बना ही रहा हूँ इसको, आपको फिगर खुद बनाना है बुक से देख करके. यहाँ पे रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पास फोकस, और ये फोकस से जाने वाली रे इस तरह से आती है. तो अब मेरे बन नहीं पा रही, आपको इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे ही. ठीक है, यू हैव टू मेक दिस फिगर. ठीक है, तो आपको क्लियर है? सो मेक इट. तो ये आंसर आपका ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. 5 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपके 3 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है. सो 3 to 5 की वेटेज आप इसकी मान के चलिए इस क्वेश्चन की. ठीक है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 3 मार्क्स की और 5 मार्क्स की इसकी कितनी वेटेज का क्वेश्चन आ सकता है. और एग्जाम्स में आया हुआ है, सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कभी न कभी. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. An object 2 cm high is placed 20 cm in front of a concave mirror of focal length 10 cm. Concave mirror of focal length 10 cm. Find the distance from the mirror at which the screen should be placed in order to obtain a sharp image. अब आपको स्क्रीन कहाँ पर रखनी है ये बताना. अब स्क्रीन कहाँ पर रखनी है ये कोई नई चीज नहीं है, बस समझने वाली बात है. स्क्रीन कहाँ पर रखनी है? जहाँ पर इमेज बनानी है हमने.
इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वहीं पर हमें स्क्रीन को रखना है, तो सीधी सी बात है कि आपको इमेज डिस्टेंस मालूम करनी है, बाकी आपको वैल्यूज दी हुई है। तो ये एक 3 मार्कर अच्छा क्वेश्चन है जो 3 मार्क का आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है ऐसे क्वेश्चंस को भी। बुक में आपके एग्जाम्पल्स में भी, बुक में एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, और हम अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले एक रूल होता है कि हमें जो दिया हुआ है मिरर वो लिखना है, या लेंस जो भी है, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ताकि हमें उसके साइन कन्वेंशन को प्लेस करने में फिर आसानी है। एंड व्हाट नेक्स्ट इज गिवन, object 2 centimeter high, means we keep on writing the values which are given. HO, object height is 2 centimeter, 20 centimeter in place of a concave mirror, place at 20 centimeter means U, and U is always negative, that we all know, 20 centimeter. Focal length 10, in case of concave mirror the focal length is also negative, so it is minus 10. Find the distance from which at the screen should be placed, means screen should be placed means the image, where the image will be formed, that we have to find out. It means we have to find out V. Okay, so when we know these all values, we can use the formula now. By 1 over f, the mirror formula is 1 over f equal to 1 over V plus 1 over U. So we use it here, 1 over f. 1 over f means, 1 over f, the value we can put here, 1 over f is how much? Minus 10 equals to 1 over v. 1 over v we have to find out, plus 1 over u is minus 20. So v will be now 1 over minus 10 plus, this will be here negative, and when we goes this side it becomes plus 1 over 20. So we are keeping at it 1 over v हम यहीं पे रख रहे हैं, इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं, और उसके बाद हम उनको रिवर्स कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो ये आपको सीखना चाहिए कैसे हम वैल्यूज को इस तरह से लिख सकते हैं। इट्स नथिंग कि हम बस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड शिफ्ट किया वैल्यूज को, बट साइन का ध्यान रखेंगे, अगर माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, और प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और माइनस जब इधर जाएगा तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, ये प्लस। 1 over v equals to 20 minus 2 plus 1, v equals to now 1 over v equals to minus 1 over 20, and then v finally comes minus 20 centimeter. ठीक है, तो then v comes minus 20. What will be the size and nature? अब size and nature निकालने के लिए हमें, आपको मालूम है कि हमें क्या यूज करना होता है, हमेशा we need to find out m. m equals to minus v over u. m मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, minus v minus 20 minus and u is again it is minus 20. m equals to 20 over minus 20, and it comes minus 1. Since m comes minus 1, then it will be the first point we can write, image formed at, answer now will write image formed at, yeah, screen, where should the screen placed, or we can write screen is placed at, screen is placed at, screen is placed at what distance? 20 centimeters. Screen is placed at 20 centimeter distance. Second, what will be the nature? And since it is negative, so image will be real and inverted. And when it is 1 means, when m comes 1, it means of the same size. Image of same size of object, same size of object, that is height hi equal to m into ho, ये यूज कर लेंगे लास्ट में, और hi height of the image, m is minus 1 and ho is height of the object is 20, and then it will come
sorry, height of the object is 2 centimeter, it will come minus 2 centimeter. Minus means it is inverted basically. Okay, height is coming my negative, it means the image is inverted. So here the next question is, a student wants to project the image of a candle flame on the wall of a school laboratory by using a lens. Which type of lens should be used and why? At what distance in terms of focal length f of the lens should be placed the candle flame so as to get a magnified image? And second case, a diminished image respectively on the wall. So what is given there? First A part, which type of lens should be used and why? तो which type of lens should be used to obtain an image on the wall? देखिए वॉल पर इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज रियल है. अब रियल इमेज आपके दो लेंस कॉन्वेक्स और कॉन्केव किससे मिलती है? कॉन्वेक्स लेंस से. तो इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही यूज कर सकते. तो आंसर पहले पार्ट का हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस. एंड यू विल राइट व्हाई, द रीजन बिकॉज ओनली कॉन्वेक्स लेंस गिव्स अ रियल इमेज. ओके, तो ये आप स्टेटमेंट आगे लिख सकते हैं. नाउ द बी पार्ट, at which distance in term of focal length f of the lens should be placed the candle flame of the head. अब आपको रियल इमेज चाहिए और भाई डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, और लेकिन दोनों ही रियल होंगे, डिमिनिश्ड भी रियल होगी और मैग्नीफाइड भी रियल होगी. तो आप जब आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज जब हम फोकस पर रखते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी इमेज जो है मिलती है जब हम फोकस पे रख देते हैं. फोकस से जो इमेज मिलती है वो इन्फिनिटी पे तो मिलती है, बट रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होती है. आपको वो केस कंडीशन पढ़िए, when the object is placed at focus, in that case image formed is magnified. तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीफाइड के लिए फर्स्ट पार्ट का आंसर when placed at f, when placed at f. अब हमें दूसरी कंडीशन में कैसी चाहिए इमेज? चाहिए हमें डिमिनिश्ड. तो डिमिनिश्ड के लिए जो केस है वो कौन सा है? when the object is placed. डिमिनिश्ड इमेज कब मिलेगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज चाहिए. तो डिमिनिश्ड इमेज हमें कब मिलेगी? when the object is placed at infinity. सबसे ज्यादा छोटी इमेज कब मिलेगी? when object placed at infinity. ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैंडल फ्लेम. when candle flame is placed at infinity, तब हमें बहुत डिमिनिश्ड छोटी सी इमेज मिलेगी. और जब हम कैंडल फ्लेम को फोकस पर रख देंगे तब हमें कैसे मिलेगी इमेज? हाईली एनलार्ज मैग्नीफाइड. ठीक है, फोकस पर रखने. सो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए चैप्टर, आई थिंक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखिए क्या करना है हमें. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ पहला, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं. स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टर्स इन द सर्किट. अब दिख रहे हैं 10 ओम और 20 ओम दो रेजिस्टर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन किस टाइप का? तो आई थिंक इससे जो सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता. ए पार्ट का आंसर आ जाएगा पैरेलल. द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, बोथ आर पैरेलल बिकॉज़ पैरेलल में क्या होता है? दोनों एंड, इन दोनों रेजिस्टर्स के दोनों एंड आपस में, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लो. तो देखिए इस रेजिस्टर का ये वाला एंड इसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड है और दूसरा वाला एंड उस दूसरे रेजिस्टर का यहाँ पर, यानी कि दोनों के दोनों एंड आपस में क्या है? कनेक्टेड है. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर. आपको आप मालूम करेंगे 10 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा और 15 ओम से. देखिए क्या होता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी 3 वोल्ट का है और इसमें भी 3 वोल्ट का. जब वो पैरेलल में, सीरीज में ऐसा नहीं होता. सीरीज में करंट सब में सेम होता है, लेकिन जब पैरेलल में रेजिस्टर्स होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनमें सेम होता है. यहाँ पर भी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 ओम रेजिस्टर में भी और 15 ओम रेजिस्टर में भी. तो इस कंडीशन में आई थिंक अब हमारे लिए कैलकुलेशन आसान ही हो जाएगी. हमें मालूम करना है 10 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहेगा. आई 10 लिख देते हैं, आई 10 ओम भी लिख लो. तो इससे करंट के आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर. वी इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 10. तो आई थिंक 0.3
एम्पियर एंड द नेक्स्ट पार्ट आई 10 ओम, अब मैंने आई 15 ओम चाहिए, 15 ओम से कितना करंट फ्लो होगा रेजिस्टर से, देन अगेन द फॉर्मूला, so it is this time it is 3, potential difference will be same 3 volt, and this is 10 ohm, and here also 3 volt and 15 ohm. In this case 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 ampere. The answer will come 0.2. So we have calculated both current in both the resistors now. तो आंसर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके लिख सकते हैं, बी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. तो सिंपल कैलकुलेशन, बस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है. व्हाट इज द एमीटर रीडिंग? अब एमीटर रीडिंग निकालने के लिए, क्योंकि पूरे सर्किट का करंट आएगा उस एमीटर में, तो हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी चाहिए. तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, बाकी दोनों पार्ट बहुत सिंपल है. 1 over R equals to RP equals to 1 over 10 प्लस, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, आप फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए हमेशा, जैसे 1 over RP equals to 1 over R1 plus 1 over R2. तो फॉर्मूला लिखना जरूर हमेशा चाहिए. 1 over RP, now it comes as in 30, 3 plus 2, so RP will come now, रेसिप्रोकल कर देंगे 30 over 5, it will come 6 ohm. टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया, 6 ohm आ गया. तो अब कैलकुलेशन करनी है, हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का, V हमारे पास 3 वोल्ट है, तो I करंट इन द सर्किट I इक्वल्स टू V अपॉन R, सो इट विल कम 3 over दिस इज 6, सो 0.5 डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर. तो एमीटर रीडिंग इज नाउ, emitter reading equal to 0.5 ampere. Okay, so question is simple but just concept based question. Next is calculate the resistance of electric bulb which allows 10 ampere current when connected to a 20 volt power source. So resistance मालूम करना है, I think बहुत ही simple question है ये तो. R to find out, I equals to given 10 ampere and V equals to 220 volt. We have to find out resistance. So R equal to V over I, 220 over 10. So this will be 22 ohm. Very simple question. Okay. Next is 10 bulbs are connected in series circuit to a power supply line and 10 identical bulbs are connected in parallel circuit to an identical power supply. अब देखिए दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 10 bulbs का एक कॉम्बिनेशन पैरेलल है में है, और एक ही वही सेम कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में, और पावर सप्लाई दोनों में क्या है, सेम है. तो विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब? अब किस सर्किट में सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच बल्ब? अब अगर सेम वोल्टेज सप्लाई होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर बहुत सारे बल्ब पैरेलल, यहाँ पे हम लगा दें, ऐसे करके लगा दें पैरेलल, बहुत सारे बल्ब लगा दें पैरेलल में. अब ये तो 10 नहीं दिखा रहे हैं, हम 10 बल्ब को नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल ऐसे 2-3 बल्ब दिखा दी. तो इसमें भी V, इसमें V, इसमें V, और जो सर्किट का सप्लाई है पोटेंशियल डिफरेंस वो सब में क्या होगा, सेम होगा. लेकिन अगर यही बल्ब सीरीज में लगते हैं, ऐसे करके सीरीज में अगर इन्हीं बल्ब को लगा दें हम, तो जो पोटेंशियल हम सप्लाई करते हैं वो, सपोज हमने यहाँ पे 6 वोल्ट सप्लाई कर दिया, तो इन सबको अलग अलग 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट की सप्लाई होगी. सीरीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. करंट सब में सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. अगर ये इक्वल रेजिस्टेंस है, अब हमें बताया कि सारे बल्ब सेम है तो इसलिए इक्वली डिवाइड हो जाएगा. अगर यहाँ पे 6 वोल्ट होता है तो देखेंगे इसमें भी 6 वोल्ट होगा, इसमें भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट. इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस अक्रॉस, हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब मिलेगा. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विच सर्किट वुड हैव, तो जो हम क्या लिख देंगे आंसर, पैरेलल. ठीक है, विच सर्किट इज इन पैरेलल दैट विल हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब. ठीक है, समझ गए क्यों, क्योंकि पैरेलल में सब में वोल्टेज सेम होता है, जितना सप्लाई हो रहा था उतना ही सबको ही मिलता है, और सीरीज में वही चीज क्या होती है, डिवाइड हो जाती है.
विच सर्किट विद द बल्ब बी ब्राइटर, अब किस सर्किट में बल्ब ब्राइटर होंगे, डेफिनेटली जहां वोल्टेज सप्लाई ज्यादा है वहां बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आई थिंक इन पैरेलल अगेन। इफ वन बल्ब ब्लोज आउट इन विच सर्किट विल अदर बल्ब स्टॉप ब्लोइंग, तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम एक बल्ब को ब्लो ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसको हटा दें, बीच में से कोई भी हटा दें, तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये ग्लो करना बंद कर देगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, विच सर्किट, इसमें क्या होगा, अगर ये बंद ग्लो करना बंद कर देगा, बाकी दो तो कनेक्टेड है पूरी तरह से, तो ये काम करता रहेगा सर्किट, लेकिन ये वाले सर्किट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट और आगे बल्ब ग्लो करना बंद कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच सर्किट वुड बल्ब स्टॉप ग्लोइंग, आंसर विल बी सीरीज, ठीक है, जिसमें सीरीज में कनेक्टेड है। विच सर्किट वुड हैव लेस करंट इन इट, सिंपल है, तो ये तो सिंपल आ गया, किस सर्किट में करंट कम होगा। देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना पैरेलल में जितने हम रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे उतना ही नंबर ऑफ रेजिस्टर बढ़ते जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ बल्ब बढ़ेंगे, तो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसमें नंबर ऑफ बल्ब जोड़ते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए पैरेलल में करंट ज्यादा होता है। सॉरी, लेस पूछा है तो लेस का आंसर तो डेफिनेटली क्या होगा, सीरीज। अगर मोर पूछा होता तो पैरेलल आता, बट इट इज आस्क्ड लेस, तो लेस करंट किसमें होगा, सीरीज वाले में, तो आंसर विल बी सीरीज। तो सीक्वेंस में दे रखे दो के आंसर पैरेलल और दो के आंसर सीरीज में, बट ऐसा हर एक क्वेश्चन के साथ हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आउट ऑफ द टू वायर्स एक्स एंड वाई शोन बिलो विच हैज ग्रेटर, आई थिंक ये तो आप लोगों को शायद बहुत ही फनी सा क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक की सेम डायमीटर दिख रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का ए है, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम थिकनेस है, बट लेंथ का फर्क है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आई थिंक वायर वाई, वाई बिकॉज लेंथ इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे आप पूरा, वाई बिकॉज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट्स वाई द वायर वाई विल हैव मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट, मार्क्स फिर भी आपको पूरे ही मिलेंगे अगर आप ये ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। Okay, now come to the next. I think the simple question in your book also the same type of question given as an example. In circuit diagram given below, the current through each resistor. So I think it's very easy to calculate current through each resistor. We say suppose it is I1, this is I2, and suppose this is I3. So I1 will be now this is V6 and 6 in each resistor, यहाँ पे भी 6 होगा, इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 होगा, ठीक है। तो I1 कितना आ जाएगा, I equal to V upon R, V upon R, this formula we'll use here, V upon R1, because V will remain same, तो इसलिए हम V लेते हैं, V1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सब में क्या हो सेम, it is 6 over 2 and then it will come 3 ampere. I2 will be V upon R2, and this time it will be 6 over 5 and it will be 1.2, and I3 will be V upon R3 and V equals to 6 over 10, 0.6. Okay, so let us check the answer. 5 to 3 is 3 ampere, and this is 4.8 it is coming, but it should come. Okay, so this is coming, total is 3 and 1 4.2 and 4.8. Okay, so this is 3 ampere, 1.2 ampere, 0.6. The current through each resistor means I1, I2, I3. The total current, so the total current अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था, total current is how much, second part, total current
I equals to, this is the first part, A part we can say, and the B part. Total current I equals to I1 plus I2 plus I3, and this comes 3 plus 1.2 plus 0.6. It is 4.8 ampere. Now the total effective resistance. So effective resistance we can calculate by two ways. R equal to V upon I से भी कर सकते हैं, or we can use the formula 1 over R P equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 से भी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सीधे सीधे 1 over Rp equals to 1 over 2 plus 1 over 5 plus 1 over 10. एलसीएम ले लो, थोड़ा लेंथी सा होता है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. 10 2 5 sir plus 2 plus 1 over Rp will be now 6 over 10, and 6 over 10, or Rp equals to then 10 by 6, and it will come 1.67, around 67 ohm. Okay, so this way we will get the total resistance. Now we come to the next one. Two lamps are, one rated 60 watt and at 220, other rated 40 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric supply 220 volt. Draw a circuit diagram to show the connection. I think ये तो आप बना ही लेंगे. ठीक है, सर्किट डायग्राम की एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ऐसे करके एक बल्ब इधर लग जाएगा आपका. और ये बुक में भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब वैल्यू चेंज है, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं. तो प्लीज फिगर आप अच्छी बनाइएगा, मेरी तरह से नहीं बनाना है. तो यह प्लस और ये माइनस, ये इस तरह से आप बना लो. ठीक है, तो अच्छे से पेन स्केल और पेंसिल से बनाते हैं हमेशा फिगर एग्जाम में, और उसके भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जाम में के लिए. जो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो ध्यान रखें. ठीक है, तो एक हमने ले लिया 60 वाट और एक ले लिया हमने 40 वाट, और सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट की. ठीक है, तो ड्रॉ सर्किट पहला पार्ट हो गया. बी पार्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई. अब करंट ड्रॉन के लिए आप पहले इसमें I1 निकालो, फिर I2 निकालो, तब हम टोटल करंट निकाल पाएंगे. तो I1 निकलेगा कैसे, यहाँ पे पावर दिया हुआ है और V दिया हुआ है. तो P इक्वल टू VI फॉर्मूला आपको मालूम है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VI, देन I इक्वल टू P ओवर V, 60 ओवर 220. अब इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इनको कैलकुलेट करना ही नहीं, यहाँ पे छोड़ देना है. ठीक है, जब फाइनली आंसर I2 I1 प्लस I2 निकालेंगे टोटल करंट, तब करेंगे इसको. P ओवर P1 ओवर V, P2 ओवर V, क्योंकि V तो सेम ही है, पैरेलल में है, तो इसलिए सेम रहेगा. 40 ओवर 220 एम्पियर, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही. टोटल करंट मालूम करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 60 ओवर 220 plus 40 over 220, then it will come 100 over 220. ओके, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. I इक्वल्स टू देन कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 over 11 आ गया, देन 0.44 and 4, and then it will remain 44, then 6 5. okay, so 0.45 ampere around will come total. now calculate the total energy consumed. अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका एक अलग पार्ट है जिसमें हम एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं. उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू N इंटू P इंटू T, और सिंपली P इंटू T, जब यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लायंसेस ज्यादा नहीं है तो P इंटू T कर लेते हैं. टोटल पावर कितना है यहाँ पर, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100. E इक्वल टू 100, पावर कितना है 100 वॉट हो जाएगा, 60 प्लस 40, एंड 1 आवर.
यूज फॉर 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर है, तो आर मीन्स टाइम इक्वल टू 1, so E equal to comes 100 watt hour, and जो कमर्शियल यूनिट है वो एनर्जी कंज्यूम की किलोवाट आवर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, देन इट विल कम 0.1 किलोवाट आवर और 0.1 यूनिट. This will be the formula for energy consumed. So E will come 0.1 unit or 0.1 kilowatt. So this is the, now we come to the next. Though same current flows through the electric line wires and the filament of bulb, yet only the filament glows by. अब ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. Though same current flows through the electric line, एक इलेक्ट्रिक लाइन से सेम करंट फ्लो होता है, yet only the filament glows, लेकिन सिर्फ फिलामेंट ही ग्लोज करता, जो कनेक्टिंग वायर है वो ग्लो नहीं करती. तो उसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. जो फिलामेंट है उसका रेसिस्टिविटी काफी हाई होने की वजह से दैट प्रोड्यूसेस हीट, whereas the connecting wire, it is good conductor, so it does not heat up and does not glow. तो ये पहले पार्ट का आंसर है. आपको स्टेटमेंट मालूम है, बुक से आप इसको रीड कर सकते हैं. Then the temperature of filament bulb is 2700 degrees Celsius when it glows. Why does not get burned up to such high temperature? अब क्यों नहीं बर्न होता? एक तो जो उसका फिलामेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, और दूसरा इसके अंदर हमने गैसेज, जो इनएक्टिव गैसेज हैं लाइक नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, इनको यूज करते हैं जिससे वो बर्न, क्योंकि वो दे आर इनएक्टिव गैसेज दैट दे डू नॉट हेल्प इन बर्निंग, और वो हमारा फिलामेंट बर्न नहीं होता. ठीक है. फिर थर्ड में द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प व्हिच ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. An electric iron is rated 2 kilowatt at 220 volt. Calculate the capacity of the fuse that should be used. तो पहला क्वेश्चन है, the filament of electric lamp which draws a current of 0.5 ampere is used for 4 hours. Calculate the amount of charge. So what is the formula to calculate the charge? Q equals to I into T. But this time should be in seconds, and here it is time given in hours. So Q equals to, C part is I equal to 0.25 ampere, and time equals to 4 hours. 4 into R will convert it in seconds, 60 into 60. So it will become 25 4s are 100. It will become 1 into 60 into 60, and that will come 3600 coulomb. So this will be the charge. Okay, simple question. बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टाइम को आवर्स की जगह सेकंड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन केस ऑफ चार्ज टाइम इज ऑलवेज इन सेकंड्स. एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 2 किलोवाट एट 220 वोल्ट. कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज. अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक केटल को कितना करंट चाहिए, उसी हिसाब से हम उस जो फ्यूज वायर यूज करते हैं उसकी. अब ये देखिए सिलेबस का पार्ट है नहीं फ्यूज वाला पार्ट आपका, ऑलरेडी इसको इस वाले टॉपिक को फ्यूज वाले में हम यहाँ पे कैलकुलेट करना देखेंगे कि कितना कैपेसिटी का फ्यूज आप यूज करते. ठीक है, जिससे कि आपको वो सेफ्टी रहे. फ्यूज का यूज क्या है? जस्ट पर्पज ऑफ सेफ्टी. तो कितनी कैपेसिटी का फ्यूज यूज करेंगे उसके लिए कैसे मालूम पड़ेगा? पहले हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक आयरन को कितना करंट चाहिए. तो I इक्वल्स टू P over V. So P is how much? 2 kilowatt means 2000 watt, and it is 220. तो अराउंड 9 पॉइंट समथिंग के आसपास की जरूरत पड़ेगी. 9.12 एम्पियर अराउंड. ओके, अप्रोक्सीमेटली. तो अब जो हमें फ्यूज वायर यूज करना पड़ेगा उसकी कैपेसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए. तो अराउंड 10 एम्पियर कैपेसिटी का फ्यूज वायर हम यूज करेंगे इन दिस सर्किट टू मेक इट सेफ. ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिखा. अगर इससे कम कैपेसिटी का करेंगे तो इट विल ब्लो अप, सर्किट फ्यूज वायर उड़ जाएगा, सर्किट भी मेल्ट हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि जितना हमें रिक्वायर्ड करंट रिक्वायरमेंट होता है हमारे सर्किट में उससे थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी का हम फ्यूज वायर यूज करें. तो आई थिंक 10 एम्पियर कैपेसिटी का फ्यूज वायर यूज करें.
अब एक देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। स्टडी द IV ग्राफ एंड 4 कंडक्टर्स ABCD आर गिवन। तो यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा शायद, ABCD 4 कंडक्टर, ये आपका ये V है और ये I है, चलिए VI बना देते हैं। तो अब VI ग्राफ, ये उल्टा लिखा हुआ VI ग्राफ, ठीक है, IV ग्राफ नहीं है, ये VI ग्राफ है, ठीक है। तो स्टडी द VI, अब IV था, मैंने चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। Study the VI graph for 4 conductors A, B, C and D having the resistance RA, RB, RC and RD respectively and answer the following question। इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन को आंसर करना, ठीक है। Which of these is the best conductor? अब बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जितनी भी ये लाइंस हैं सब किसको बता रही हैं? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। A का रेजिस्टेंस, B का रेजिस्टेंस, C का रेजिस्टेंस। अब जिसका स्लोप जितना ज्यादा V की तरफ होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जिसका स्लोप होता है ज्यादा, जैसे ये है और ये B है, इसका स्लोप ये V की तरफ ज्यादा है, तो A और ये B जो है V की तरफ V से दूर है थोड़ा सा, तो इसका मतलब इसका A का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और B का रेजिस्टेंस से कम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका? D का, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? वायर A का। तो इसका मतलब RA सबसे कम है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A सबसे कम है, इसलिए A, वायर A इज द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या सबसे कम। इफ ऑल द कंडक्टर्स आर द सेम लेंथ एंड द सेम मटेरियल, विच इज द थिकेस्ट। अब सेम मटेरियल के हैं, सेम कंडक्ट लेंथ के हैं, तो थिक कौन सा होगा? जिसमें करंट सबसे, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। थिकनेस के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता जाता है ना, रेसिप्रोकल है। तो इसका आंसर भी A होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए A सबसे थिकेस्ट। If all the conductors are of the same thickness and of the same material, which, अब कंडीशन बदल दी इन्हें, थिकनेस सेम बता दी अब की बार में। अगर ऐसा हो ना, एक्चुअली कंडीशनल दे रखा, अगर थिकनेस सेम में हो, मटेरियल भी सेम हो, तो विच इज द लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट, लेंथ बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। थिकनेस सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? D का। इसका मतलब वायर D क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए D, वायर जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि थिकनेस और बाकी चीजें क्या है? सेम। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल बट देयर मटेरियल डिफरेंट, वुड यू यूज अ रेजिस्टेंस वायर और कनेक्टिंग वायर। अब इन चारों में से किसको आप रेजिस्टेंस वायर की तरह यूज करेंगे और किसको कनेक्टिंग वायर? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसको कनेक्टिंग वायर की तरह यूज करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसको रेजिस्टेंस वायर की तरह से यूज करेंगे। तो वायर A को तो हम करेंगे कनेक्टिंग वायर की तरह से यूज, और वायर D को यूज करेंगे हम रेजिस्टेंस वायर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या ज्यादा है। और कनेक्टिंग वायर जो गुड कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसको हम कनेक्टिंग वायर की तरह से यूज करेंगे। तो A को हम कनेक्टिंग वायर की तरह से यूज करेंगे और D को हम यूज करेंगे एज अ रेजिस्टेंस वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। अब इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है? तो भाई सबसे कम रेजिस्टेंस RA है और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस RD है, तो अरेंज करके देख लो। RA रेजिस्टेंस लेस देन RB, लेस देन RC, लेस देन RD। सबसे ज्यादा RD का है, सबसे कम किसका? RA। तो RA इज लेस देन RB, RB इज लेस देन RC, RC इज लेस देन RD, रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रिपेयर करने सारे अच्छे पार्ट है। ये 5 मार्क के क्वेश्चन में भी कभी कभी एग्जाम में आता है। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम अ कॉइल कैरिंग अ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस करंट, राइट द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द अबव कॉइल। तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? टू प्रोड्यूस करंट बाय ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ magnet and the coil. When the current gets induced or current gets developed, that is called electromagnetic induction. Explain how the movement of magnet towards and away from a coil carrying a galvanometer produce current. तो ये एक्सप्लेन करना, आपने इस एक्टिविटी को समझा देना कि जैसे हम इसकी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और आप एक मैग्नेट को लेके गए, इसके टुवर्ड्स लेके जाते हैं, तब क्या होता है? करंट इंड्यूस हो जाता है ऐसे लेके जाने से। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे कट और दे गेट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वायर ऑफ दिस कॉइल and magnetic field line. There is a relative motion between the magnetic field lines and the coil, and because of that the current gets induced. तो ये सिंपल सा आंसर हो गया, रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में। एंड
राइट द रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कट करती है इसको तो करंट इंड्यूस होता है, उस करंट की डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इस करंट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? तो करंट की डायरेक्शन को मालूम कर हमने देखिए 3 रूल्स डिस्कस किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फोर्स ऑन द कंडक्टर मालूम करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हमने कौन सा यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसको आपने लिखना भी है, यहाँ पे देखिए राइट करना है तो आपको सिर्फ लिखना, रूल नहीं लिखना बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन का। मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट द मैग्नेटिक, what are the magnetic field lines, how the direction of magnetic field lines at a point determined। magnetic field lines क्या है? magnetic field lines are the hypothetical lines around a magnet which shows the strength या फिर magnetic field around a magnet or which represent a magnetic field line, a magnetic field around a magnet। so magnetic field lines क्या? magnetic field lines are the hypothetical lines which represent magnetic field around a magnet। How is the direction of magnetic field at a point determined? किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास को रखेंगे, जिस डायरेक्शन में कंपास का नॉर्थ पोल पॉइंट करता है वही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। कंपास से मालूम करते हैं। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी? पहली प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। Second, magnetic field lines are denser at the poles, rarer at the center, and magnetic field lines never intersect each other। तो कोई भी 2-3 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है, उनको आप लिखते हैं, ठीक है? 2 प्रॉपर्टी लिखनी, 2-3 लिखनी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Draw a rough sketch of the pattern of field lines due to a current flowing into a circular coil and the solenoid carrying current। अब current flowing into a circular coil, अब इसके लिए देखिए मैंने फिगर यहाँ पे अलग से मैंने अभी ड्रॉ नहीं करनी, आपको दोनों फिगर्स की इमेज यहाँ पे रखी है, इसको देखिए। तो पहला वाला क्या है? सर्कुलर कोयल। तो ये वाली फिगर आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज दिस इज बेटर व्हिच इज गिवन इन योर बुक, उससे अच्छी फिगर है और सारी चीजें इसमें क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, करंट फ्लो की डायरेक्शन और किस तरह से मैग्नेटिक। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर तक आते आते, जैसे हम सेंटर की तरफ टुवर्ड्स आते हैं यहाँ से, तो अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ तक आते आते, पहले तो सर्कुलर थी, जैसे आते थोड़ी सी पैराबोलिक होती है और सेंटर तक आते आते स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलती है। तो ये फिगर का ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दोनों तरफ, जब हम मैग्नेटिक इसको करंट फ्लो के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा रूल अप्लाई करना चाहिए आपको, ठीक है? तो इसके लिए रूल अप्लाई करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके देखेंगे तो अपने आप, अगर कई बार क्या होता है आप करंट फ्लो की डायरेक्शन को पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को उल्टा बना दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नेचुरली चेंज हो जाएंगी। तो आपको वो ध्यान रखना है, रूल को अप्लाई करते हुए ड्रॉ करनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है? एरो बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट एरो आपके मार्क्स कट जाएंगे। द सेम इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की फिगर बनी हुई है, आपको मालूम है कैसे बनानी है, एंड दिस इज वेरी सिंपल। इसमें भी जहां पर नेगेटिव पोल होगा, जहां नेगेटिव पोल होगा वो नॉर्थ होता है हमेशा, और जहां पॉजिटिव होता है वो हमेशा क्या होता है? साउथ। तो इसके अकॉर्डिंगली आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड जो है आपने पैरेलल लाइंस बनानी है और साउथ टू नॉर्थ बनानी है, ठीक है? चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है, what change in the direction of compass needle placed at a point near current carrying straight conductor shall be observed if the current through the conductor is increased। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपने कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है, कोई आपने एक ऐसे करके स्ट्रेट कंडक्टर लिया, इसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं और आपने यहाँ पे एक कंपास नीडल रखा हुआ है। तो अब जैसे इसमें हम करंट पास करते हैं, इसमें करंट पास किया आपने, तो इसमें करंट पास करने से, क्योंकि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये नीडल है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे हम करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उससे डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, ठीक है? फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर रिवर्स। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, बट जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, पहले अगर राइट साइड को डिफ्लेक्ट करा तो करंट फ्लो की डायरेक्शन अगर इधर चेंज हो गई, इसमें पहले इधर को करंट जा रहा था तो डिफ्लेक्शन सपोज इधर को हो रहा है,
तो जैसे करंट फ्लो की डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो डिफ्लेक्शन सपोज इधर को हो जाए। तो वो डिपेंड करता है किस तरफ हो रहा है, ये हमें मालूम नहीं है, बट हम लिख सकते हैं कि द डिफ्लेक्शन विल बी ऑन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन विल बी इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। फिर थर्ड पार्ट है कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अगर कंपास को दूर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वो खत्म हो जाएगा, तो नो डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन या तो कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज, या बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा कोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन। what is the solenoid? Compare the magnetic behavior of a straight solenoid with that of a bar magnet. On what factor does the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depend? How a soft iron piece can be transformed in an electromagnet? तो solenoid क्या होती है? Solenoid is a device, or solenoid is a cylindrical coil of insulated copper wire having length more than its diameter. तो इस तरह से हमारे एक कोई हम कॉइल बना लें और इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट एक सेल से कनेक्ट कर दें, तो ये क्या होता है, एक सोलेनॉइड बन जाता है। और जैसे इसमें करंट पास करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये माइनस, ये प्लस है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ। तो ये सोलेनॉइड है। कंपेयर द मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रेट सोलेनॉइड विद दैट ऑफ अ बार। अब देखिए ये हमें मालूम है कि जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है, और जो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सेम होती है। ठीक है, जो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं और जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम, एक ही तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम। बट फर्क क्या है, फर्क भी है उसमें। देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बार मैग्नेट, क्या बार मैग्नेट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी वो एक बार जो बन गई वही होती है, उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन जो सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी आप स्ट्रेंथ को कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, उनमें कोई ये नहीं कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे एक बार मिलेंगे वो बार बार उनको आप कर सकते, उनकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते। ठीक है, और जो बार मैग्नेट में उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या रहती है, या डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, इसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, क्योंकि जैसे आप पोलरिटी चेंज करेंगे, सेल की डायरेक्शन बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल जाएगी। इसमें नहीं कर सकते, इसमें तो हमेशा एक, इस पोल ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ है तो साउथ रहेगा। तो ये यहाँ पे सोलेनॉइड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पोलरिटी कैन बी चेंज, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी चेंज, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, फिर है ऑन व्हाट फैक्टर जज द स्ट्रेंथ ऑफ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, इस सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बी प्रोपोर्शनल टू आई अमाउंट ऑफ करंट and B proportional to n number of turns, and B is proportional to core material. Core material means whatever the material we use, soft iron, wood or plastic, whatever, कोई भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो सॉफ्ट आयरन के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग हमें मैग्नेट मिलता है। How a soft iron piece can be transformed in an electromagnet? तो soft iron piece को, if we place a soft iron piece inside the solenoid and pass current through the solenoid, this iron piece will start to behave like a magnet. ये आयरन पीस क्या, जहां पे इसका नॉर्थ पोल है ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरह से जब हम इसको सोलेनॉइड के अंदर किसी आयरन पीस को रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नहीं, दिस इज एनफ फॉर टुडे। आई थिंक ऑल मोस्ट ऑल द 3 चैप्टर्स आर डिस्कस्ड, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करना है, बट दीज आर द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम। बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। आगे और भी क्वेश्चंस होंगे, बट अभी आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए एंड रिपीट करिए। ये आप सब चीजें ना आपको सिर्फ सुननी नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योर ओन। ओके,
Okay, thank you dear students.